حضرت سعد بن ابی وقاص کی تاریخ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اسلامی تاریخ کے عظیم صحابہ کرام میں سے ایک ہیں۔ ان کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے ابتدائی اسلام قبول کیا اور اپنی زندگی میں اسلامی فتوحات میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کی بہادری، عزم و ہمت اور شجاعت کی داستانیں آج بھی مسلمانوں کے لیے مشرہ ہے۔ ابتدائی زندگی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کا تعلق قریش کے ایک معروف خاندان سے تھا۔ ان کی والدہ کا نام حمیرہ تھا اور ان کی والدہ نے انہیں بچپن میں ہی نیک باتوں کی تعلیم دی۔ ان کا بچپن مکہ مکرمہ میں گزرا، جہاں انہوں نے اپنے خاندان کے ساتھ رہتے ہوئے بہت سی مشکلات کا سامنا کیا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا آغاز کیا تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں اپنا نام درج کرایا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی عمر اس وقت تقریباً 17 سال تھی، اور ان کی والدہ نے جب یہ سنا کہ ان کا بیٹا اسلام قبول کر چکا ہے تو وہ بہت ناراض ہوئیں اور ان کے اسلام کو چھوڑنے کا مطالبہ کیا۔ لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنے ایمان پر ڈٹے رہنے کا فیصلہ کیا اور اپنی والدہ کی ناراضگی کی پرواہ نہ کی۔ انہوں نے اپنے ایمان کی خاطر ہر قسم کی مشکل برداشت کی، اور یہ ان کی عزم و ہمت کی مثال ہے۔ ہجرت اور جہاد۔ جب مسلمانوں کو مکہ مکرمہ میں سختیاں اور مظالم کا سامنا کرنا پڑا تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ منورہ ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہجرت کے بعد انہوں نے مدینہ میں بھی اسلامی تحریک کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو غزوات میں بھی شامل ہونے کا موقع ملا۔ غزوہ بدر، غزوہ احد اور دیگر اہم معرکوں میں انہوں نے شجاعت و بہادری کا مظاہرہ کیا۔ غزوہ احد میں جب مسلمانوں کی صفوں میں بے چینی پھیل گئی تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے نبی اکرم کی حفاظت کی اور ان کی شجاعت کی مثالیں قائم کیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کا تیر چلانا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو تیر اندازی میں خاص مہارت حاصل تھی۔ نبی اکرم نے ان کی تیر اندازی کی مہارت کو بہت سراہا اور انہیں اپنے ساتھ رکھ کر جہاد میں مدد کرنے کا موقع دیا۔ ایک بار نبی اکرم نے فرمایا، میں نے سعد بن ابی وقاص سے کہا، تیر چلاؤ، اللہ کی قسم، تیر چلانے والے تیر کا ایک تیر بھی تمہیں اللہ کی راہ میں اور جنت کی طرف لے جانے میں مدد دے گا۔ یہ الفاظ حضرت سعد کے لیے بہت حوصلہ افزائی کا باعث بنے اور انہوں نے اپنی پوری زندگی میں اللہ کی راہ میں جہاد جاری رکھا۔ خلافت کا دور۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو خلیفہ عمر بن خطاب کے دور میں اہم ذمہ داریاں سونپی گئیں۔ انہوں نے اسلامی مملکت کی فتوحات میں اہم کردار ادا کیا۔ حضرت عمر نے انہیں فارس کے خلاف مہم کی قیادت سونپی، جہاں انہوں نے بڑی بہادری اور حکمت عملی سے کام کیا۔ ان کی قیادت میں مسلمانوں نے قادسیہ کی جنگ میں ایک بڑی فتح حاصل کی۔ یہ جنگ مسلمانوں کے لیے ایک اہم موڑ ثابت ہوئی اور اس کے نتیجے میں اسلامی سلطنت کی حدود کو مزید وسیع کیا گیا۔ جنگ قادسیہ کا واقعہ۔ جب حضرت سعد بن ابی وقاص کو جنگ قادسیہ میں مسلمانوں کی قیادت کا موقع ملا تو یہ ایک فیصلہ کن جنگ تھی جو مسلمانوں اور فارس کے درمیان ہوئی۔ یہ جنگ تاریخ اسلام میں بہت اہمیت کی حامل ہے اور اس میں حضرت سعد کی قیادت نے نمایاں کردار ادا کیا۔ جنگ کی تیاری۔ جب جنگ کی خبر پہنچی تو حضرت سعد نے فوراً اپنی فوج کو تیار کرنا شروع کیا۔ انہوں نے اپنی فوج کو یکجا کیا اور انہیں جنگ کی حکمت عملی بتائی۔ انہوں نے کہا، یہ جنگ ہمارے دین اور ہماری بقا کی جنگ ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہوگا اور اللہ پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ حضرت سعد کی یہ باتیں مسلمانوں کے حوصلے کو بڑھانے میں بہت مددگار ثابت ہوئیں۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو یقین دلایا کہ اللہ ان کی مدد کرے گا۔ دشمن کی فوج۔ جب جنگ کا آغاز ہوا تو حضرت سعد نے دیکھا کہ دشمن کی فوج بہت بڑی تھی، لیکن انہوں نے اپنے سپاہیوں کو مایوس ہونے سے منع کیا اور کہا، ہماری طاقت اللہ کی مدد میں ہے، نہ کہ دشمن کی تعداد میں۔ اگر ہم ثابت قدم رہے تو انشاءاللہ ہمیں کامیابی ملے گی۔
मैदान जंग में शुजात। जंग के दौरान हजरत साद ने अपनी शुजात की मिसाल कायम की। उन्होंने दुश्मन की सफों में घुसकर बहादुरी से लड़ाई की। उनकी तलवार की ज़रबों ने कई दुश्मनों को नाकाम बना दिया। उनके साथ उनके साथी भी भरपूर हौसला अफजाई के साथ लड़ रहे थे। हजरत साद ने हर लम्हा अपने सिपाहियों की रहनुमाई की और उनकी बहादुरी और ईमान ने जंग का रुख मोड़ दिया। उन्होंने दुश्मन को सख्त नुकसान पहुंचाया और उनकी सफों में अफरातफरी पैदा कर दी। फतह का ऐलान। बिलाखिर हजरत साद की क़ियादत में मुसलमानों ने शानदार फतह हासिल की। ये फतह इस्लामी तारीख की एक अहम कामयाबी थी। जब जंग खत्म हुई तो हजरत साद ने अपने साथियों को जमा किया और फरमाया, ये कामयाबी सिर्फ हमारे ईमान और अल्लाह की मदद की वजह से हुई है। हमें हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। शुक्रगुजारी। जंग के बाद हजरत साद ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपनी फौज को यकीन दिलाया कि ये फतह उनकी मेहनत और ईमान की बदौलत है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें इस फतह का मकसद समझना चाहिए, यानी दीन की तबलीग और हक की राह में साबित कदम रहना। जंग खैबर। हजरत साद बिन इब्बी वकास रजी अल्लाह अन्हु की जिंदगी का एक और नुमाया वाक़या जंग खैबर का है। ये जंग इस्लाम की इब्तिदाई तारीख में एक अहम मोड़ साबित हुई और हजरत साद की बहादुरी और क़ियादत ने इसमें अहम किरदार अदा किया। जंग खैबर का पस मंजर। खैबर एक कलानुमा इलाके में वाक़ था जहां यहूदी कबाइल रहते थे। यहूदियों ने मुसलमानों के खिलाफ कई साजिशें की और उनकी दुश्मनी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। रसूल अल्लाह ने फैसला किया कि उनकी सरगर्मियों को रोकने के लिए जंग की जरूरत है। जंग खैबर के दौरान हजरत साद बिन इब्बी वकास को भेजने का फैसला किया गया। हजरत साद का इंतखाब। हजरत साद की बहादुरी, हिकमत और ईमान की वजह से उन्हें इस जंग के लिए मुंतखब किया गया। रसूल अल्लाह ने उन्हें कहा, तुम्हें अल्लाह की राह में लड़ने का मौका मिल रहा है, अल्लाह तुम्हारे हाथों से अजीम फतह अता फरमाएगा। जंग की तैयारी। हजरत साद ने अपने साथियों को जमा किया और उन्हें जंग की तैयारी के लिए मुतहर्रिक किया। उन्होंने कहा, हमें अपनी सफों को मजबूत रखना है और अल्लाह पर भरोसा करना है। ये जंग हमारी बका की जंग है। उनकी क़ियादत ने सिपाहियों के हौसले को बढ़ाया और सब ने अज़्म कर लिया कि वो अल्लाह की राह में लड़ेंगे। मैदान जंग में शुजात। जंग के आगाज पर जब मुसलमानों ने किले की तरफ पेश कदमी की तो दुश्मन ने भरपूर मुज़ाहमत की। हजरत साद ने अपनी बहादुरी का मुजाहरा करते हुए किले की तरफ बढ़ना शुरू किया। उन्होंने अपने सिपाहियों की रहनुमाई की और उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत दिलाई। जब हजरत साद ने दुश्मन के सिपा सालार की मौजूदगी महसूस की तो उन्होंने फौरन इसकी तरफ बढ़ने का फैसला किया। उनकी शुजाअत ने दुश्मन के हौसले को तोड़ दिया और वो पीछे हटने लगे। हजरत साद ने अपनी तलवार से कई दुश्मनों को नाकाम बना दिया। फतह का ऐलान। आखिरी मरहले में हजरत साद की क़ियादत और शुजाअत ने मुसलमानों को अजीम फतह अता की। जब किला फतह हुआ तो ये एक तारीखी लम्हा था। हजरत साद ने इस मौके पर अपने साथियों को जमा करके कहा, ये फतह हमारी मेहनत, अज़्म और ईमान की बदौलत हुई है। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। शुक्रगुजारी का मुजाहरा। फतह के बाद हजरत साद बिन इब्बी वकास ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपनी फौज के सामने ये कहा, हमें इस फतह का मकसद समझना चाहिए, यानी दीन की तबलीग और मुसलमानों की हिफाजत। हमने सिर्फ एक जंग नहीं जीती बल्कि दीन की सरबुलंदी की राह हमवार की है। शेर का वाक़या। हजरत साद बिन इब्बी वकास की जिंदगी में एक दिलचस्प वाक़या है जिसमें एक शेर का जिक्र है। ये वाक़या न सिर्फ उनकी शुजाअत को जाहिर करता है बल्कि अल्लाह की कुदरत की निशानी भी है। एक दफा हजरत साद बिन इब्बी वकास अपने साथियों के साथ जंगल में शिकार पर गए। वो अपनी महारत के लिए मशहूर थे और अक्सर शिकार के लिए निकलते थे। इस दिन जब वो जंगल में थे तो अचानक एक शेर उनके सामने आ गया। शेर की जबरदस्त आवाज ने जंगल की खामोशी को तोड़ दिया
और हजरत साद और उनके साथी खौफजदा हो गए। हजरत साद की बहादुरी। जब शेर उनके करीब आया तो बाकी लोग खौफ से पीछे हटने लगे, लेकिन हजरत साद ने अपनी जगह पर कायम रहने का फैसला किया। उन्होंने अपने साथियों को कहा, तुम लोग खौफजदा ना हो, हम अल्लाह के नाम से इस शेर का मुकाबला कर सकते हैं। हजरत साद ने अपनी तलवार निकाली और शेर की जानिब बढ़ने लगे। उनके हौसले ने उनके साथियों को भी हिम्मत दी और उन्होंने हजरत साद के साथ मिलकर शेर का सामना करने का फैसला किया। शेर का मुकाबला। शेर की तरफ बढ़ते हुए हजरत साद ने अल्लाह से दुआ की कि वो उन्हें कामयाबी अता फरमाए। जैसे ही वो शेर के करीब पहुंचे, हजरत साद ने शेर पर हमला कर दिया। ये देखकर शेर भी हैरान हुआ और घबरा गया। हजरत साद की बहादुरी और अज़्म ने शेर को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। कामयाबी और शुक्रगुजारी। आखिरकार हजरत साद और उनके साथियों ने शेर को भगा दिया। शेर की इस गैर मुतवक्के हरकत ने उनके हौसले को मजीद बढ़ा दिया। जब वो वापस आ रहे थे तो हजरत साद ने अपने साथियों से कहा, हमें अल्लाह की मदद और नुसरत पर यकीन रखना चाहिए। जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह इसकी मदद करता है। हजरत साद का वालिद के साथ ताल्लुक। एक दफा हजरत साद बिन इब्बी वकास की वालिदा ने उन्हें सख्ती से कहा कि वो इस्लाम छोड़ दें। उन्होंने जवाब दिया कि वो अपने दीन के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार है। इस पर उनकी वालिदा ने कहा कि वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश को कुर्बान न करें। हजरत साद ने कहा, अगर अब मेरी जान ले लें तो मैं अपना दीन नहीं छोड़ूंगा। ये उनके अज़्म और दीन के साथ मोहब्बत को जाहिर करता है। हजरत साद की बहादुरी की दास्तान। जंग कादसिया के दौरान जब जंग की शिद्दत बढ़ गई तो हजरत साद ने अपने सिपाहियों को कहा, हमें अपने ईमान को साबित करना है। आज की जंग सिर्फ हमारी बका की जंग नहीं बल्कि अल्लाह की राह में जिहाद है। इसके बाद उन्होंने अपने घोड़े पर चढ़कर दुश्मन के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई की। उनकी क़ियादत में मुसलमान फौज ने शानदार फतह हासिल की। दोस्ती और वफादारी। हजरत साद बिन इब्बी वकास ने अपनी जिंदगी में वफादारी की मिसाल कायम की। एक दफा जब उनके दोस्त और साथी हजरत उस्मान की तरफ से कुछ मुश्किलात का सामना कर रहे थे तो हजरत साद ने उनकी हिमायत की। उन्होंने फरमाया, हमें हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए क्योंकि यही ईमान की अलामत है। हजरत साद का तालीम का शौक। हजरत साद इब्बी वकास इल्म के हुसूल में भी मशहूर थे। एक दिन उन्होंने कहा, इल्म का तलब हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। हमें अपने इल्म को बढ़ाना चाहिए ताकि हम अपनी कौम की रहनुमाई कर सकें। इस बात ने उनके साथियों को इल्म के तलब के लिए मुतहर्रिक किया। जंग मोतह का वाक़या। जंग मोतह के दौरान जब हजरत ज़ैद बिन हारसा शहीद हुए तो हजरत साद बिन इब्बी वकास ने फौरन क़ियादत संभाली। उन्होंने अपने सिपाहियों को हौसला दिया और कहा, हमें इस जंग में अपनी जानें कुर्बान करनी होंगी ताकि इस्लाम का पैगाम फैल सके। उनकी क़ियादत में मुसलमानों ने शुजाअत के साथ लड़ाई की और दुश्मन के खिलाफ जीत हासिल की। हजरत साद का सदका। हजरत साद बिन इब्बी वकास हमेशा सदका देने में आगे रहते थे। एक दफा उन्होंने कहा, सदका दीन की रूह है। जो शख्स अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, अल्लाह इसकी मदद करता है। उन्होंने अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा जरूरतमंदों में तकसीम किया। जंग यरमूक। जंग यरमूक में हजरत साद बिन इब्बी वकास ने मुसलमानों की फौज की अहम क़ियादत की। उन्होंने अपने सिपाहियों की हौसला अफजाई की और दुश्मन के खिलाफ जबरदस्त फतह हासिल की जो मुसलमानों की ताकत को मजीद बढ़ाने में मददगार साबित हुई। फतह मक्का। फतह मक्का के दौरान हजरत साद ने भी अहम किरदार अदा किया। उन्होंने दुश्मन के खिलाफ लड़ाई में मुसलमानों की क़ियादत की और फतह के बाद अमन व अमान के क़याम में मदद फराहम की। हजरत साद इब्बी वकास की दुआ। एक दफा हजरत साद इब्बी वकास ने अल्लाह ताला से दुआ की कि वो उनकी दुआ कबूल फरमाए। उन्होंने दुआ में कहा, ए अल्लाह,
मुझे अपनी राह में शहादत अता फरमा। इस दुआ के बाद जब वो मैदान जंग में गए तो उन्होंने बहादुरी से लड़ाई की और कई दुश्मनों को शिकस्त दी। हजरत साद इब्न वक्कास का अपने वालिदा के साथ मामला। एक दिन हजरत साद इब्न वक्कास की वालिदा ने उन्हें इस्लाम छोड़ने की तलकीन की, लेकिन हजरत साद ने कहा कि अगर वो पूरी दुनिया की चीजें भी दें तो वो अपने दीन को नहीं छोड़ेंगे। ये वाकया उनकी दीन के साथ मोहब्बत और साबित कदमी को जाहिर करता है। दरिया में घोड़े दौड़ाने वाला वाकया। हजरत साद बिन इब्न वक्कास की बहादुरी और क़ियादत का एक मशहूर वाकया है जो दरियाओं में घोड़े दौड़ाने से मुताल्लिक है। एक दफा जब हजरत साद ने मुसलमानों के साथ मिलकर एक जंग की तैयारी की तो उन्होंने अपने साथियों को ये मशवरा दिया कि वो अपनी फौजी महारत को बेहतर बनाएं और घड़ सवारी के फ़न में माहिर हों। इस मकसद के तहत हजरत साद ने दरियाए फरात के किनारे एक जगह का इंतखाब किया जहां उन्होंने अपने घोड़ों की तरबियत शुरू की। उन्होंने अपने साथियों को वहां बुलाया और कहा, हमें अपने घोड़ों को मजबूत और तेज करना है ताकि हम मैदान जंग में दुश्मन को शिकस्त दे सकें। हजरत साद और उनके साथियों ने दरिया के किनारे घोड़े दौड़ाने का फैसला किया। ये मंजर निहायत दिलकश था जब वो सब घोड़ों पर सवार होकर दौड़ रहे थे। इस दौरान हजरत साद ने अपने साथियों को ये नसीहत की कि हमें हमेशा अल्लाह की राह में मेहनत करनी चाहिए, चाहे वो मैदान जंग हो या तरबियत का मैदान। ये तरबियती सेशन हजरत साद की क़ियादत में चलता रहा और उन्होंने अपने साथियों को मुसलसल हौसला अफजाई की। उनकी मेहनत और लगन ने उनकी फौजी सलाहियतों को बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। जब मुसलमान बाद में मैदान जंग में गए तो उन्होंने इस तरबियत का भरपूर फायदा उठाया और दुश्मन के खिलाफ जबरदस्त फतह हासिल की। हजरत साद बिन इब्न वक्कास और औरत का झांकने का वाकया। हजरत साद बिन इब्न वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु का एक मशहूर वाकया है जिसमें एक औरत ने उनके घर के अंदर झांकने की कोशिश की और हजरत साद रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो रद्द अमल दिया वो उनकी गैरत, इंसाफ और शर्म व हया की मिसाल के तौर पर बयान किया जाता है। वाकया कुछ यूं है कि एक दिन हजरत साद बिन इब्न वक्कास अपने घर में मौजूद थे। अचानक एक औरत ने उनके घर की दीवार के एक सुराख से अंदर झांकने की कोशिश की। जब हजरत साद को इस बात का इल्म हुआ कि एक औरत उनके घर में झांक रही है तो उन्होंने फौरन एक तीर उठाया और औरत की तरफ फेंका ताकि इसे इस अमल से रोका जा सके। हजरत साद बिन इब्न वक्कास का ये अमल इस बात को जाहिर करता है कि वो अपनी और अपने अहल खाना की इज्जत व हया के मामले में कितने हसास थे। उन्होंने इस बात की बिल्कुल इजाजत नहीं दी कि कोई भी गैर मुहर्रम उनके घर की हुदूद में बेजा मुदाखलत करे या उनकी निजी जिंदगी में दखल अंदाजी करे। जब इस वाक़ये के बारे में बात की गई तो हजरत साद इब्न वक्कास ने फरमाया कि अगर औरत को नुकसान पहुंच जाता तो वो इसके जिम्मेदार न होते, क्योंकि वो उनकी निजी जिंदगी में मुदाखलत कर रही थी और इस्लाम में किसी की प्राइवेसी को पामाल करने की सख्त ममानात है। ये वाक़या इस बात की मिसाल है कि इस्लाम में प्राइवेसी और इज्जत व हया की कितनी अहमियत है और हजरत साद बिन इब्न वक्कास का रद्द अमल इस्लामी अखलाकियात और गैरत की बेहतरीन नुमाइंदगी करता है। हजरत साद इब्न वक्कास और बद्दुआ का वाक़या। एक दफा हजरत साद बिन इब्न वक्कास पर एक शख्स ने झूठा इल्जाम लगाया और उनकी शख्सियत को बदनाम करने की कोशिश की। हजरत साद इब्न वक्कास इस बात से बहुत दिल गिरफ्ता हुए, लेकिन उन्होंने सब्र का मुजाहरा किया। इस शख्स ने लोगों के सामने हजरत साद की बुरी बातें की, जिस पर हजरत साद इब्न वक्कास ने फरमाया, अगर मैं सच्चा हूं तो अल्लाह तुम्हें जरूर सजा देगा। कुछ दिनों बाद वो शख्स सख्त बीमारी में मुब्तला हो गया और लोगों ने देखा कि हजरत साद इब्न वक्कास की दुआ कबूल हुई। ये वाक़या उनकी दुआओं की तासीर और अल्लाह के साथ उनके मजबूत ताल्लुक को जाहिर करता है। जवानों की रहनुमाई। हजरत साद बिन इब्न वक्कास ने हमेशा नौजवानों की रहनुमाई की। उन्होंने उन्हें अल्लाह की राह में जिहाद करने की तरगीब दी और उन्हें यह सिखाया कि अल्लाह की राह में कुर्बानी देना कितना अहम है। उनकी रहनुमाई से बहुत से नौजवान इस्लाम की तरफ राग़िब हुए और उन्होंने अपनी जिंदगी को अल्लाह की राह में वक्फ कर दिया। हजरत उमर की तारीफ।
खलीफा हजरत उमर बिन खिताब ने हजरत साद बिन इब्बी वकास की बहुत तारीफ की। एक बार उन्होंने कहा, साद, तुम एक बहादुर और निडर सिपाही हो। तुम्हारी बहादुरी और इल्म हमारे लिए एक मिसाल है। ये बात हजरत साद इब्बी वकास के लिए बड़ी इज्जत की बात थी और उन्होंने अपनी खिदमत को मजीद बेहतर बनाने का अज़्म किया। दुश्मनों के साथ मेहरबानी। हजरत साद बिन इब्बी वकास ने अपनी जिंदगी में दुश्मनों के साथ भी मेहरबानी का बर्ताव किया। एक दफा जब एक दुश्मन ने उनके सामने आकर कहा कि वो इस्लाम कबूल करना चाहता है, तो हजरत साद इब्बी वकास ने इसे खुश आमदीद कहा और उसकी मदद की। ये वाक़या इस बात का सबूत है कि हजरत साद ने हमेशा अमन और मोहब्बत को फरोग दिया। जन्नत की बशारत। हजरत साद बिन इब्बी वकास को नबी अकरम ने जन्नत की बशारत भी दी। एक दफा नबी अकरम ने फरमाया, साद इब्बी वकास, तुम जन्नत के एक हिस्सा के वारिस हो। ये बात हजरत साद के लिए एक बड़ा एजाज था और उन्होंने अपनी जिंदगी में इस बशारत को अपने लिए एक मकसद बनाया। मकाम अहद। ग़ज़वा अहद के दौरान हजरत साद बिन इब्बी वकास ने एक अहम मकाम पर अपनी तीर अंदाजी की महारत का मुजाहरा किया। जब मुसलमानों की सफ़ों में इंतशार पैदा हुआ तो उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। इस मौके पर उन्होंने दुश्मन की जानिब तीर फेंके, जो कि उनकी बहादुरी और महारत का सबूत है। इस्लामी फतूहात में किरदार। हजरत साद बिन इब्बी वकास को इस्लामी फतूहात के दौरान अहम किरदार अदा करने का मौका मिला। उन्होंने इस्लामी फौजों को क़ियादत फराहम की और मुख्तलिफ महाजों पर दुश्मन का मुकाबला किया। उनकी क़ियादत की बदौलत इस्लामी सल्तनत की सरहदें वसी हुईं और नए इलाके इस्लाम की आगोश में आए। शेर की आह। एक दिन हजरत साद बिन इब्बी वकास एक जंग के दौरान अपनी बहादुरी का मुजाहरा कर रहे थे, जब अचानक एक शेर उनके सामने आ गया। ये शेर मुसलमानों की तरफ बढ़ रहा था। हजरत साद इब्बी वकास ने अल्लाह का नाम लिया और शेर की तरफ तीर फेंका। तीर शेर को लगा और वो भाग गया। ये वाक़या इस बात की अलामत था कि अल्लाह की मदद हमेशा मोमिनों के साथ होती है। सुर्रा की फतह। हजरत साद बिन इब्बी वकास ने बसरा की फतह में भी अहम किरदार अदा किया। उन्होंने इस शहर की तरफ पेश कदमी की और मुसलमानों के साथ मिलकर इस पर कब्जा किया। बसरा की फतह ने इस्लामी सल्तनत की सरहदों को मजीद वसी किया और इस इलाके में इस्लाम के पैगाम को फैलाने में मदद फराहम की। हजरत अली और हजरत साद की गुफ्तगू। हजरत साद बिन इब्बी वकास और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के दरमियान एक दिलचस्प गुफ्तगू हुई। एक दिन हजरत अली ने हजरत साद से कहा, साद, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे दिल में मेरे बारे में क्या है? हजरत साद ने जवाब दिया, मेरे दिल में आपकी मोहब्बत है, लेकिन आपके कुछ फैसलों से मैं मुतमईन नहीं हूं। ये बात हजरत अली ने बहुत पसंद की और उन्होंने इस गुफ्तगू के जरिए ये बात वाज़ेह की कि वो हमेशा हक को अहमियत देते हैं। आपका लक़ब सैयद अल मुजाहिदीन। हजरत साद बिन इब्बी वकास को सैयद अल मुजाहिदीन का लक़ब दिया गया। ये लक़ब उनकी जंगी महारत और इस्लामी मुहिमात में उनकी शमूलियत की वजह से मिला। इस लक़ब के पीछे ये हकीकत है कि उन्होंने हर मरके में भरपूर हिस्सा लिया और अल्लाह की राह में अपने माल और जान की कुर्बानी दी। शहादत की दुआ। ग़ज़वा अहद के दौरान हजरत साद बिन इब्बी वकास ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होकर दुआ की कि ए अल्लाह, मुझे शहादत अता फरमा। उन्होंने अल्लाह से ये दुआ इसलिए की कि वो चाहते थे कि वो अल्लाह की राह में अपनी जान कुर्बान कर सके। ये वाक़या उनकी कुर्बानी की ख्वाहिश और अल्लाह की राह में जिदोजहद करने की शदीद ख्वाहिश को जाहिर करता है। वफ़ात। हजरत साद बिन इब्बी वकास की वफ़ात 55 हिजरी में हुई। उनकी उम्र 75 साल थी। आपको मदीना मुनव्वरा में दफन किया गया
اور آج بھی ان کی قبر مسلمانوں کے لیے ایک عظیم یادگار ہے۔ وراثت۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی زندگی کا درس یہ ہے کہ ایمان، عزم، شجاعت اور اللہ کی راہ میں جہاد ہمیشہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ ان کی بہادری اور ایمان کی داستانیں آج بھی ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے ہمیں کبھی بھی اپنے ایمان کو کمزور نہیں ہونے دینا چاہیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کا نام اسلامی تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گا اور ان کی خدمات کا ذکر ہمیشہ کیا جائے گا۔ وہ ایک عظیم صحابی اور اسلامی تاریخ کے ایک اہم کردار کے طور پر یاد رکھے جائیں گے۔